Friends, today we are going to see the lesson, the first lesson, A standard honeydew. The first lesson is there, it's a storybook, and the first lesson we are going to learn how the camel got his hump. Okay, here we have to understand the meaning of hump. Hump means something is on his on the back of camel. Okay, it is एक बड़ा सा कुछ उसके पीठ पे लगा होता है, तो उसे हम्प कैसे मिला, हाउ इट इज़ हम्प. द स्टोरी इज जस्ट अबाउट द इसाप टाइप. ओके, दिस इज एलेगोरिकल स्टोरी, moral story which is giving the idea, which is giving the moral lesson to the human being. Okay, the story is related in the ancient time. ये जो शुरुआत होती है तो बहुत ही पुराने समय की ये स्टोरी बताती है. द स्टोरी इज़ लाइक एलेगोरिकल एंड गिविंग द मॉरल आइडिया टू अस व्हाट एग्जैक्टली वाई मीन्स actually the story is something different, but the message from the story is something different one. And what is the message and what is the story, let's see through the story. Before that we have to prepare some questions, we have to solve some questions or some introduction about the lesson, what the writer want to tell us. Friends, see, first part, first few questions, first few important information is given to us. The world had just begun and the animal were working for the human beings. Okay, दुनिया नई नई बनी हुई थी तब की ये बात है. एक्चुअली द स्टोरी इज़ नॉट फ्रॉम देयर बट इट इज़ इमेजिनरी आइडिया ऑफ द राइटर. तो दुनिया जो है बहुत पहले बनी हुई है, और वो जब बनी थी तो सारे एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के लिए काम कर रहे थे, इंसान के लिए काम कर रहे थे. देन देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हार्म्फ. जो पुराना उनमें से जो एनिमल काम कर रहे थे उनमें से एक एनिमल ऐसा है कि जो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और सिर्फ उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, यही एक आवाज़ निकलती है, हम. कभी कोई पूछता है भाई काम किया, तो उसका आवाज़ वही निकलता है, हम. बस कुछ देता नहीं है. बट इनको सबको कंट्रोल करने वाला एक जिन है. ओके, व्हाट इज़ द जिन? इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. ये जो क्लेवर जिन है, तो वो जिन सबको कंट्रोल करता है. दैट जिन इज कंट्रोलिंग ऑल द एनिमल्स एंड द सिचुएशन और द वर्क, और डिवाइड द वर्क बिटवीन दैम और ऑल एनिमल्स. बट हियर हिज वीट ऑल्सो एंड. उसकी भी जो विट विच मीन्स इज नॉलेज, हिज आइडियाज़, हिज ब्रेन ऑल्सो नॉट वर्किंग ऑन अबाउट दैट पर्टिकुलर एनिमल. विच एनिमल इज देयर? Camel. Definitely we can understand the title. Let's see the story. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. He ate stick and thorns and the prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. When the beginning is there, okay, in that beginning all the animals were started working for the humans, and in that also which animals are there we will understand through the story. Okay, on one animal we will understand, but one animal, it is not, one animal did nothing for the human, or whatever the work has given to that animal, he has not completed a single work also. Just he was eating the thorns, okay, thorns, prickles, and only sticks, grass he was eating. But whenever somebody is asking to him, brother, you have did the work, his answer was always there, hump. Why you are wasting your time? His answer was always hump. He was giving no answer to anyone. This animal is indicated to the any person, those are not working their work. Okay, the person is not doing any work. ऐसे आदमी को ये एनिमल इंडिकेट करता है जो बहुत ही लेजी होते हैं. ओके, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क्स प्रॉपरली. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. पहले तो वो बेचारा हॉर्स आता है, उसके पीठ पर
पैडल सैडल है जो बैठने के लिए होता है, सैडल हो, एंड जिस पर्टिकुलर वर्क इज़ गिवन टू द हॉर्स, तो हॉर्स उस एनिमल को कहता है, कैमल को कहता है कि अरे एनिमल, कैमल, डियर कैमल, वाई यू आर सिटिंग लाइक ए लेजी पर्सन, वाई यू आर रेस्टिंग, डू समथिंग वर्क, योर लाइफ इज़ फॉर डूइंग, योर वर्क इज़ पेंडिंग। तो हर दिन का उसके ऊपर कोई ना कोई काम बिल्कुल पड़ता जाता है, बिल्कुल भी वो कल का काम आज है ना, हम कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी कर, लेकिन कई लोग होते हैं जिनका काम उल्टा होता है, अब करे सो आज कर, आज करे सो कल, और कल करे सो देखेंगे जब होगा तब होगा। सो उनके काम जो होते हैं वो पेंडिंग होते जाते हैं, एक एक काम पेंडिंग होता जाता है, और वो काम मतलब कल का काम अगर आज करेंगे तो होता है, लेकिन जो आज का काम है वो कल करेंगे तो फिर एक एक वर्क पेंडिंग होता जाता है। तो कैमल कहता है कि रेस्ट मत करो भाई, यू कैन कंप्लीट योर वर्क। हम सेड द कैमल एंड हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हॉर्स को तो वही आंसर मिला, एंड द हॉर्स इज वेंट टू द मैन एंड ही हैज़ गिवन द आंसर, ही हैज रिपोर्टेड टू द ह्यूमन, reported the man, see that one animal is not doing the work and we are doing the hard works. Presently the dog came to him with a stick in his mouth. Now see, dog is here, dog stick कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, स्टिक लेकर घूम जा रहा है, मतलब he is doing something, he is not lazily, it is sitting on one place, okay, at least doing something। तो छोटी सी एक स्टिक उसके माउथ में बिछा के और वो जा रहा है। Oh camel, come, fetch and carry like the rest of us. Said the camel, and the dog went away and told the man. Presently the ox came on him with a yoke on his neck, and said camel, oh camel, come, plow like the rest of us. Said the camel, and ox went away to man, told the man. पहले बेचारा डॉग है, डॉग को वो कहता है कि हम, तो बेचारा डॉग ऑल्सो बिकम वेरी एंशियस अबाउट इट। डॉग का एंशियस क्यों हुआ? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ या सामने वाला बैठा हुआ है, हाउ इट इज़ देयर, तो ही इज़ कंप्लेन और ही इज़ गिविंग द रिपोर्ट टू द मैन, कंप्लेन की कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो तीसरा एनिमल आता है, फर्स्ट हॉर्स हैज़ कंप्लेन टू द मैन, सेकेंड डॉग हैज़ कंप्लेन टू द मैन, एंड थर्ड हु इज़ कंप्लेनिंग, ऑक्स केम टू द उससे वही कहता है कि कम वर्क लाइक अस, वर्क विथ अस। ही हैज़ ऑल्सो गिवन द आइडिया, बट हॉर्स हैज़ ऑल्सो गिवन, ox has also taken get the same answer. He has also got the same answer, hump, and therefore ox went to the human being, went to the man, and reported and complained that see, that camel is sitting on one place and we are doing the work and we are doing his work most importantly, but the man, जिसे हमें पता है कि मैन इज सिंपली ही इज़ डेंजरस, पहले से आदमी बड़ा स्वार्थी, पहले से सेल्फिश है, उसको ये नहीं होता कि चलो 3 लोग काम कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके नाइस, इट इज़ ये एक सिस्टम या कुछ इंस्टीट्यूशन या कहीं भी कंपनी में कहीं भी आप जाओगे तो आपको वो होगा। अगर 3 लोग कंप्लेन करना थे एक इंसान की, तो एक को निकाल देते हैं और उसका काम ये तीनों को सौंप देते हैं कि चलो करो। It is better to doing our work, but it is very worst, it is very painful to doing the others work. Okay, तो वैसे ही होता है। At the end of the day, the man called the horse, dog, and the ox together. 303, I'm very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone, and you must वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। मैन जो होता है वो सबको बुलाता है, तीनों को बुलाता है और कहता है कि अरे देखो, आप डॉग, हॉर्स एंड द ऑक्स, सी दैट कैमल इज़ नॉट लिसनिंग माई वर्ड्स और ही इज़ नॉट डूइंग द प्रॉपर वर्क, सो आई डोंट वॉन्ट सच सर्वेंट, आई डोंट वॉन्ट सच अ सर्वेंट हु इज़ नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। उसे छोड़ रहा हूँ मैं अपने पास उसे रखने वाला नहीं हूँ, तो उसे छोड़ दिया मैंने, तो अभी होगा ये। आप एक काम करो, तीनों अब एक तीनों उसका काम आप ही कर लो, यू कंप्लीट हिज वर्क, डबल काम कर लो, डबल टाइम यू कैन डू दिस वर्क।
That made the three very angry, and they held the panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said, "Hum," and went away again. अब हुआ कि तीनों बेचारे परेशान हो गए, तीनों के अंदर ये हो गया, अरे करे क्या, मतलब ये डॉग को लग रहा है कि इसका कैमल का काम मुझे दे रहे हो, हॉर्स को लगता है कि मुझे उसका काम दे रहे हो, एंड ऑक्स ऑल्सो आई एम डूइंग माई ड्यूटी. ओके, द प्रॉब्लम इज व्हाट दोज आर नॉट डूइंग द ड्यूटी, दे हैव टू पनिश. बट यहाँ पे हुआ कि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके ऊपर बेचारों का दे आर सफरिंग, दे आर पनिशिंग, दे आर गेटिंग द पनिशमेंट. लाइक बेचारे तीनों के तीनों जाके एक पंचायत लेते हैं डेजर्ट के बिल्कुल बाहर. ओके, द डेजर्ट के बाहर जाकर वो एक मीटिंग लेते हैं. एंड व्हेन दे वर सिटिंग दे वर टॉकिंग अबाउट दिस वन, द कैमल वाज पासिंग फ्रॉम देयर. कैमल तो बिल्कुल आराम से जा रहा है वहाँ से, और जैसे ही कैमल जा रहा है उनकी तरफ देखता है, ही लाफ एट देम, तरफ बेचारा देख मुस्कुराता है और कहता है कि हम मीन्स व्हाट, हाउ आई डिड, इट्स फाइन, माई वर्क इज टू यू एंड नाउ आई एम फ्री. But presently there came along the jinn who was in charge of all the desert, rolling in the cloud of dust. और तभी बेचारों की मन की आवाज़ सुनकर, तीनों की मन की आवाज़ सुनकर, तीनों का दुख समझकर वहाँ जिन आता है, जो जिन पूरे डेजर्ट का मालिक है या फिर पूरे डेजर्ट का वो एक कंट्रोलर है, पूरा डेजर्ट कंट्रोल करता है. एंड ही केम देयर, वहाँ आता है और वहाँ आकर एक डस्ट की तरह, डस्ट और क्लाउड में वो जैसे घूमता है, यू नो वेरी वेल हाउ इट इज बूमरैंग एंड लाइक क्लाउड्स, इट केम. एंड व्हेन इट इज केम, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करता है, द हॉर्स. हॉर्स सेड वेरी रिस्पेक्टली, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. अरे पूरे डेजर्ट के मालिक, द गॉड, द जिन ऑफ डेजर्ट, डू यू नो इज इट राइट टू बी लेजी, टू बी आइडल? किसी का लेजी होना या आइडल होना अच्छी बात है? तो कहता बिल्कुल नहीं. कौन कहता है ऐसे? इट्स वेरी बैड टू बी लेजी, इट्स वेरी बैड, बिकॉज हु विल डू योर वर्क इफ यू आर लेजी, देन नो बट नथिंग विल बी हैपन, नथिंग विल बी कंप्लीट. वेल, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो कहता कि सी कि आप कर रहे हैं तो फिर आप तो ढूंढ रहे हो सर आपके डेजर्ट में, इन योर डेजर्ट, इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट देयर इज वन लॉन्ग नेक, बड़ी नेक वाला एनिमल है, 4 लेग का, लॉन्ग लेग्स. ऐसा है जो मंडे से कुछ काम ही नहीं कर रहा है, डूइंग नथिंग, बिकम द लेजी लॉट ऑफ. ओह, जिन whistling, whoa, that's my camel, what does he say about it? Oh, तो बता, मेरा प्यारा कैमल है. क्या कहा उसने? What he said? He said hump and we won't plow. He won't plow. Very good, said the jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. तो उसने कुछ कहा ही नहीं. जब भी हमने पूछा कि हम ऐसे कुछ आंसर देता है, ओह अच्छा ऐसा आंसर देता है, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं उसे जाके थोड़ा खबर लेता हूँ, मैं उसके साथ थोड़ा बात करके देखता हूँ. इफ सपोज द मैटर विल सॉल्व, देन वी कैन बी गेट दिस वन. अब जैसे बेचारा जिन उसके पास जाता है, a jinn rolled himself up in his dusk cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. यहाँ वहाँ घूमने के बाद, ओके, द जिन इज फाइंडिंग आउट हिम समवेयर. पूरे जिन वहाँ ढूंढता है और एक पुल के पास बिल्कुल पानी पी के, क्योंकि पूरा खा पी के वहाँ से घूम के वो अभी पानी पीने पहुँचा है. एंड देयरफॉर द जिन फाउंड हिम एट द pool. My friend, said the jinn, what is this I hear of your doing no work? मेरे दोस्त, मैंने सुना कि तुम काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते हो.
द जीन sat down and chin has on his hand. जैसे उसको अपने chin पे हाथ रखकर वो कहता है कि and asking to him while the camel look at his own reflection that time own reflection the, the genie sat down and with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. मेरे दोस्त, my dear camel, why you are not doing the work? क्योंकि तुम्हारा काम किसी और को मिल गया है, तुम्हारा काम किसी और को दे दिया गया है, बाकी दूसरे को परेशानी हो रही है. Understand? From Monday morning, the work is divided into three and other animals. They are getting your work. Why you are not doing work? Okay, this is not fair. And he went on thinking with his chin in his hand. बेचारा सोचने लग गया और सोच ही रहा था. But the camel has not given the any answer. कैमल ने कोई आंसर ही नहीं दिया. हम द हैमल से वही आंसर दे रहा है. बहुत बार जो लोग हमारे साथ बात करते हैं व्हेन दे आर टॉकिंग विद अस ऑन द दे आर ऑलवेज गिविंग द आंसर nothing. Another answer they are not giving to us. Means they didn't need to give the answer. They thought that I should say, come to the line, I shouldn't say that again if I were you. देखो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अभी okay, I should not say that again if you were you. You might say it once too often. I want you to work. देखो बार बार मैं बताऊंगा नहीं, एक बार तुम्हें बता दिया तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गिव एनी आई विल नॉट से यू टू डू द वर्क. ओके, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू योर वर्क, नाइदर आई हैव टू गिव अ पनिशमेंट टू यू. बट द कैमल इज़ वेरी डेंजरस. कैमल इज़ वेरी वेरी लेजी. And camel said hump again, but no sooner had he said it than he saw his back. That is what was so proud of, pulling up and puffing up into the great big hump. और जैसे वो प्राउड से कुछ हम करने लगे. हाँ देखते, जैसे जिनने कहा कि आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट से यू, ही प्राउडली से टू दिस. बट सडनली उसने देखा कि पीछे उसके पीठ पर एक बड़ा सा हम्प निकला हुआ, कुबल निकला हुआ है, बड़ा सा कुछ ये हुआ है उसके पीठ पे जो होता है. दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा वेट ऑन हिज बैक. डू यू सी इट? सी दैट that is your very own hump, and that have brought up upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no works in Monday. Then when the work began, now you are going to work. Okay, तो अभी वो कहता है कि देखो कैसा लगा, अच्छा है ना. ओके, तो आज थर्सडे है, तुमने मंडे, वेडनेसडे और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और 3 दिन का काम कुछ नहीं किया है. तो 3 दिन का काम तुम्हें कंप्लीट करना है. ओके, फ्रॉम फ्राइडे यू विल बी कंटिन्यू द वर्क. हाउ कैन आई? 3 दिन का काम तुम्हें कंप्लीट करना है, थर्सडे का पूरा काम कंप्लीट करना है. तो वो बेचारा कहता है कि अरे हाउ कैन आई डू इट? सी द कैमल विथ हिज हम्प ऑन हिज बैक. ये ऐसे इतना बड़ा बोझा लेके मैं कैसा काम कर पाऊँगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया. अब इतना बड़ा अपने ऊपर मेरे पीठ पे लगा दिया तो मैं अपना काम कैसे करूँगा? हाउ कैन आई ट्रैवल? हाउ कैन आई सर्व एज अ ट्रैवलिंग? दैट हैज़ द पर्पज, सेड द जिन, ऑल बिकॉज ऑफ योर मिस्ड दोज 3 days. ये कुछ एक काम है, ये तो एक तुम्हारी पनिशमेंट है या फिर ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, ऐसे समझ के चलो. तुमने 3 दिन जो कुछ काम नहीं किया है, इसका ये एक तुम्हें पेशकश है, ये तुम्हारे लिए. ऑल बिकॉज यू मिस 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating. Okay, 3 दिन तक तुम्हें काम करना है, वो भी बिना खाए पिए अगर नहीं किए. Because you can live on your hump. क्योंकि तुम इतने महान इंसान हो, महान एनिमल हो कि अपने hump पे जी सकते हो. Because everyone you are giving the answer hump means what? You are living on the hump. Your life is a hump. तो उसके ऊपर तुम जी सकते हो. 3 दिन तक कुछ खाना नहीं है.
come out of the desert and go, sorry, and don't you ever say I never did anything for you. अब बोलना मत मुझे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है. ओके, ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. ऑलरेडी आई गिवन टू यू होम, वो तुम्हें पसंद थे वही दे दिया मैंने तुम्हें, ये लेकर घूमे अभी. एंड कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. और डेजर्ट से बाहर निकलो और अभी काम करो, तीनों के साथ काम करो, और जो अपना काम है वो भी कंप्लीट करो. यहाँ तक की स्टोरी तो होगी. दिस इज़ अ कम्प्लीटली मॉरल स्टोरी वी कैन से. इससे हमें पता चलता है कि जो लेज़ी इंसान होते हैं उसका कोई ना कोई काम तो पेंडिंग रहता है. तो अगर ये काम पेंडिंग रहेगा तो 100% ये होम पीस वर्ड इज अवर वर्क, ये हमारा काम जो है हमारे पीछे ही लगा रहता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, लास्ट के जो पैराग्राफ है, द लास्ट पैराग्राफ इज एक्सप्लेन टू प्रॉपर what exactly the writer is saying. It is a summing up, it is a conclusion of the story, it is a result of the story, what the writer given the idea through the story. Okay, and the camel went away to join the tree, and from that day to this the camel always wear a hump, but he was never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he was never yet learn how to behave. और तब से लेकर आज तक, फिर उसके बाद वो बाहर आया और 3 एनिमल के साथ काम करना शुरू कर दिया. और सही मानिए तब से लेकर आज तक वो हम के साथ ही काम कर रहा है, और वो हम कभी कम निकला नहीं, क्योंकि जिनने कहा था कि जिस दिन तुम्हारा 3 दिन का काम 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो ये हम अपने आप निकल जाएगा. अब पॉसिबल ही नहीं है 3 दिन का काम 3 days वर्क वी कैन वी कंप्लीट इन द वन डे. नो, पॉसिबल नहीं होता है. इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल. अगर वो 3 दिन का काम करेगा तो उस दिन का काम तो पेंडिंग रहेगा, 1 दिन का काम तो कम पेंडिंग रहेगा ही. तो वो कहता है कि वो होता ही नहीं है. ओके, देयरफॉर ही इज टेलिंग ही नेवर कॉट अप टू द 3 days वर्किंग फ्रॉम द 3 days इनटू द 1 day. देयरफॉर तब से लेकर अब तक बिगिनिंग टू द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव. फिर भी बेचारे ने अब तक सीखा ही नहीं कि किस तरह से रहना है, किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से बिहेव करना है. ओके, द स्टोरी इज रिटन बाय द रुडयार्ड किपलिंग, वेरी टैलेंटेड राइटर ऑफ विक्टोरियन era. Comprehension is there. The camel was looking at this own reflection in the pool. Okay, these questions you can solve through this story.